کبھی مولانا کلیم صدیق صاحب، کبھی عمر گوتم صاحب، کبھی اس مسجد پر حملہ، کبھی اس مدرسے پر حملہ، کبھی مسلمانوں کو آلستانی، کبھی مسلمانوں کو بنگلہ دیشی. کیا چل رہا ہے یہ؟ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر ایمن نظوی، اور اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں بھارت نیوز 91 پہ. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کس طرح 2 دن ہوئے پولیس نے اٹھایا، ATS نے اٹھایا اور ان پہ ایک آتنکواد کا الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈال دیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے تمام لوگ اس وقت چپ ہیں، بھارت کے مسلمان بھی تمام چپ ہیں، وہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ مولانا کلیم صدیقی پر جو یہ حملہ کرا گیا ہے، اس کی وجہ سے کتنا زبردست نقصان ہم لوگوں کو ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کس طرح کتنے مدارس سے جڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کتنے زبردست ایک ہماری مسلمانوں کی ایک انٹرنیشنل ہماری دھروہر تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا صدیقی صاحب کس نیک فرشتے کا نام ہے؟ اور مولانا کلیم صدیقی صاحب نے دین کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کون کون سے کام کرے؟ شاید آپ نہیں جانتے. اگر آپ جانتے تو باخبر ہوتے، اگر آپ جانتے تو تمام لوگ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے آوازیں اٹھاتے. جس لیول پر آواز اٹھنی چاہیے تھی اس لیول پر مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے آواز ابھی تک نہیں اٹھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 3 دن پہلے مولانا کلیم صدیقی صاحب جب میرٹھ کی ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے تو اس وقت ان کے اوپر ایک اٹیک ہی میں بولوں گی کہ ایک ATS کا اٹیک ہوتا ہے اور ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. مولانا کلیم صدیقی صاحب جو مظفر نگر کے پاس ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کھتولی، اور اس کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پھلت، وہاں کے رہنے والے ہیں. مولانا کلیم صدیقی سے میں پرسنلی تو نہیں ملی، لیکن ان کی فیملی سے میں بہت بار ملی ہوں، اور یہ شاید میری بد نصیبی رہی کہ میں مولانا کلیم صدیقی صاحب سے کبھی نہیں مل پائی. مولانا کلیم صدیقی صاحب کا ایک ایسا نام ہے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے مسلمان تو مسلمان، نان مسلم بھائی بھی بڑی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. ایک نان مسلم بھائی نے ابھی ایک تعریف میں ان کا ایک انٹرویو دیا، وہ دلت سماج سے آتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ان کو اتفاق ہوا کہ وہ زندگی میں مولانا کلیم صدیقی صاحب سے ملنے گئے. انہوں نے حسب دستور، جیسے مسلم سماج میں بھی ہوتا ہے، ہر سماج میں ہوتا ہے، جب ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم سب سے پہلے پانی پیش کرتے ہیں. تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے میرے اس دلت بھائی کو پانی پیش کرا. دلت بھائی نے تھوڑا سا پانی پیا ہوگا، مشکل تمام 1-2 سپ لیا اور اس پانی کے گلاس کو ایز اٹ از رکھ لیا. مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اس گلاس کو بڑھ کر اٹھایا اور پورا گلاس ختم کرنے کے بعد جزاک اللہ کہہ کے اس گلاس کو رکھ لیا. یہاں پر دلت سماج کے جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ میں دلت اور یہ مسلمان، اور مسلمان اتنے بدنام، اور مسلمانوں میں بھی اتنے گریٹ، اتنے بڑے رہنما، کہ ان کا میرا جھوٹا پانی، دلت سماج کا جھوٹا پانی انہوں نے پی لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بھیم راؤ امبیڈکر جو بہت بڑا نام ہے، دلت سماج کے بہت بڑے رچیتا ہیں. اتہاس میں اگر دیکھا جائے سنہرے لفظوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ سمویدھان انہوں نے بھارت میں دیا تھا. ایک دفعہ وہ پنڈت منموہن اور مالوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے جو یہ بھیم راؤ امبیڈکر ہیں، انہوں نے ان کو پانی پیش کرا، پنڈت جی نے پانی پینے کو منع کر دیا. یہ والی بات حضرت موہانی کے پاس پہنچی. حضرت موہانی جو ایک انقلابی شاعر بھی تھے اور ایک فریڈم فائٹر بھی تھے، حضرت موہانی نے امبیڈکر صاحب کو افطار پارٹی میں بلایا، اپنے برابر میں بٹھایا اور ان کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھایا. اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں تمام مذہب کو ایک ساتھ لے کے چلنے والے لوگ. اور یہی میرا اسلام سیکھ دیتا ہے کہ ہمارے اسلام میں کوئی چھوا چھات کی بیماری نہیں ہوتی، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود ہمارے دین کو جس طرح بدنام کرا جا رہا ہے، جس طرح ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. آپ ہی دیکھیے کہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو کس طرح اٹھایا. یہ بہت بڑی ہمارے اسلام کی شتی ہے اور یہ بہت زبردست بے عزتی ہے. اب میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گی جو ہمارے دین کے بہت بڑے بڑے رہنما ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے بہت کام کرتے ہیں. میں بہت باعزت طریقے سے ان لوگوں کے نام لینا چاہوں گی، جیسے ہمارے امیر الہند مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا رابع حسینی ندوی صاحب ہیں، ان کو بھی مولانا صاحب کے لیے، کلیم صدیقی صاحب کے لیے آوازیں بلند کرنی چاہیے. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے تو ایک ویڈیو بنائی بھی ہے
हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो मीम पार्टी के सरबराह हैं, और मौलाना सलमान नदवी साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान हैं, और जमीयत उलमा हिंद है। ये तमाम ऐसी तंजीमें हैं जिनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आगे आना चाहिए। लोग बड़े परेशान हैं, तमाम भारत के नहीं तमाम दुनिया के लोग बड़े परेशान हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो एक मुसलमानों में एक ब्रांड हैं, जिनकी सादगी मशहूर है, और जो अभी 7 सितंबर में मोहन भागवत से मिलकर आए। मोहन भागवत कौन है आप जानते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर है, और मोहन भागवत उनके आगे हाथ जोड़कर बिल्कुल सर झुकाए खड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे, वो ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते थे, वो पैसे की उसमें करवाते थे, 3 करोड़ की फंडिंग आई है। सबसे पहला मेरा सवाल है इस सरकार से, मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहाँ पर 4.5 साल से है। मैं मान ही नहीं सकती कि 4.5 साल से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब शक के दायरे में थे। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका शासन, आपका प्रशासन, आपकी एटीएस कहाँ पर अफीम खाकर सो रही थी। अब दूसरी तरफ मैं यहाँ पर आती हूँ कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, जिनकी सिक्योरिटी शायद आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा वो सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। जब मोहन भागवत उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी जोन में रहते हैं तो मोहन भागवत किस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलते हैं, और बहुत झुक के मिलते हैं, जैसे पहले से जानते हैं। उनको देखकर ऐसे नहीं लगता कि पहली बार मिले। तो एक आतंकवादी या एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त आदमी से मोहन भागवत किस तरह मिलते हैं, ये वाली बात भी आप तमाम लोगों को सोचनी चाहिए। और जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद हो कि जिस तरह टकैत साहब ने, किसानों ने मुजफ्फरनगर में एक बहुत महापंचायत करी थी और उसमें एक गूंज दी थी, जहां पर आपको शायद पता हो 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। उसमें किसान थे, लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर किसान थे। टकैत साहब ने वहां पर मंच पे एक बात कही थी कि हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे सन 2014 से पहले लगातार मंचों पर लगते रहे, लेकिन ये सरकार अब मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटना चाहती है। ये इसकी भूल है, आगे भी इस तरह के नारे इस मंच से लगते रहेंगे। और उसका असर देखिए कि इस वाली बात पर प्रैक्टिकल शुरू हो गया, इस वाली बात पर छापेमारी शुरू हो गई। और सबसे इजी टारगेट कौन है, सबसे इजी चुग्गा कौन है? बेवकूफ़ हम शायद मुसलमान, क्योंकि इनको पता है कि हम फिरकों में बटे हुए हैं। तू आदियानी, तू कादियानी, तू आलिस्तानी, तू यहाँ का, तू नाई, तू तेली, तू तमेली, तो इन फिरकों में हम बटे हुए हैं, कास्टिज़म में बटे हुए हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा ये सरकार उठा रही है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मुजफ्फरनगर के पास एक ज़िला खतौली है, उस खतौली के पास एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है जिसका नाम है फुलत। मैं बहुत बार फुलत गई हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी के आस्थाने पे गई हूँ, उनके मदरसे में भी गई हूँ, लेकिन शायद मैं उनको नहीं, वो मुझे ना पहचानते हो। तो वहाँ के वो रहने वाले हैं। और जब टकैत साहब ने ये नारा दिया, जब किसानों ने ये गूंज दी, तो उसका असर दिखना शुरू हुआ, रुझान आने शुरू हुए, और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया जाता है। उनकी उम्र का लिहाज नहीं करा जाता, उनकी एजुकेशन का लिहाज नहीं करा जाता, उनके मर्तबे का लिहाज नहीं करा जाता कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मर्तबा कितना बुलंद है इस मुस्लिम समाज में। और मैं आप तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे लिए एक हज़रत का दर्जा रखते हैं। वो इस रोए ज़मीन पर एक फरिश्ते वाली पहचान रखते हैं। अगर हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो धिक्कार है हमारी ज़िंदगी पर। वो बंदे जिन्होंने सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाने के लिए और चलने के लिए, वो बंदे जिन्होंने हमेशा सादगी को प्रमोट करा, वो बंदे जिन्होंने हमेशा कलाम पाक की रोशनी में बात करी, आज उन बंदों को हमारी कमज़ोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस उठा कर ले जाती है और उनको 10 दिन के लिए रिमांड में रखती है। मौलाना कलीम सिद्दीकी का उठना ही अपने अंदर एक तरह का हमारे ऊपर बेइज्जती, हमारे ऊपर एक धब्बा है। उसके बावजूद उनको अगर रिमांड में दिया जाता है तो इससे ज़्यादा हमारी और हमारे धर्म की बेइज्जती नहीं हो सकती कि किस तरह ये हमारे ऊपर टारगेट करके स्टेप बाय स्टेप हमें उठा रहे हैं, हमें वर्गला रहे हैं, हमारी मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं। किस तरह इन्होंने उमर गौतम साहब को उठाया था। उमर गौतम साहब की भी कोई गलती नहीं थी। उमर गौतम साहब को भी इसी तरह यूपी में बुलाकर पकड़ा जाता है और उनके साथ
किस तरह का सलूक करा जाता है, ये भी आप लोगों ने देखा। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। और आप देखिए कि रुझान कितनी तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि असम में क्या हुआ। असम में 800 मुसलमान जहाँ पर बसे हुए थे, वहाँ पर वहाँ के सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने, एसीपी ने वहाँ पर किस तरह बंदूकें चलाईं, किस तरह वहाँ पर हरकतें करी। और ये यूपी इलेक्शन भी है, जिस तरह आप देखिए कि यूपी इलेक्शन में इनको सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना है, एक वजह ये भी। और आप देखिए कि आसाम में भी किस तरह मुसलमानों को उजाड़ा, किस तरह मुसलमानों को डायरेक्ट गोलियां मारी, किस तरह मुसलमानों की 3 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। लेकिन हमारी कौम पे उफ है, हमारी कौम पर, बिल्कुल मुर्दा ज़मीर कौम पर, कि ये जागने को तैयार नहीं है, ये समझने को तैयार नहीं है, ये बोलने को तैयार नहीं है, ये दीन फॉलो करने को तैयार नहीं है, ये अल्लाह पे यकीन बनाने को तैयार नहीं है, ये तमाम ज़मीनी खुदाओं से डरने को तैयार रहती है और डरती है। ये अल्लाह से नहीं डरती। यही वजह है कि आज हमें चुन चुन कर, गिन गिन कर हमारे उलमाओं पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे मदरसों पर, हमारे उलमाए इकराम को टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि हम नहीं बोलेंगे, हम रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें हो गए। और जिस तरह आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इनको हाथ साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि ये लगातार हमारे उलमाओं को, हमारी मस्जिदों को, हमारे समाज को, हमारे नौनिहालों को, हमारी बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो बिजनौर का वाक़या हो, जहाँ पर देखिए आप शहजाद नाम के मासूम लड़के को पुलिस उठाकर ले गई, जबकि लड़की पक्ष, बबली पक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि नहीं, शहजाद वहाँ पर नहीं था। और जिस वक्त बबली का रेप होकर मर्डर होता है, उस वक्त शहजाद मस्जिद में बैठा हुआ साफ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में। तो हर जगह मुस्लिम समाज को टारगेट करा जा रहा है, लेकिन हम चुप बैठे हुए। अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है ये जुल्म। इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे रहनुमा को, फरिश्ते को, एक ऐसे रहबर को उठाकर जेल में डाल दिया गया। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं, मैं हर जगह पॉजिटिव सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने शायद मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को भी इसीलिए चुना है कि जिस जेल में वो जाएंगे वहाँ पर भी आप देखें कि गूंज निकलेगी। तमाम जेल वाले अल्लाहू अकबर और नालायक तकबीर के नारे देते हुए, कलमा पढ़ते हुए बाहर निकलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का ये रिकॉर्ड रहा कि उनके पास अगर किसी ने चंद घंटे गुजार दिए तो वो इस्लाम कबूल लेता है, वो सीधे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उन भटके हुए लोगों को, उन क्रिमिनल लोगों को भी शायद रास्ते पर लेकर आएंगे। और दूसरा मुझे एक ये वाली बात भी समझ में आती है, जैसे आप देखिए कि अफगानिस्तान से 3 बिलियन की जो ये अफीम पकड़ी गई और जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। 2 ग्राम पे जो सोशल मीडिया पे चीखम चिल्ली मचा रखी थी कि 2 ग्राम अफीम मिल गई थी, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। और किस तरह इन्होंने पूरा का पूरा बिहार इलेक्शन में कैश कराया था, आपको याद होगा कितना इन्होंने कैश कराया था। और अब इतनी मिल गई है अफीम के कोई बोलने को तैयार नहीं, वो भी अदानी पोर्ट पर। और जिस तालिबान पे ये पतंग उड़ा रहे हैं कि तालिबानी दहशतगर्द होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वही तालिबानी आपको यहाँ पर ड्रग्स भेज रहे हैं। और आप पूरी की पूरी 3 कंटेनर यहाँ पर भर के उतरते हैं अदानी एयरपोर्ट पर। तो उस मुद्दे को छुपाने के लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को चुग्गा बना के तमाम सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ वीडियो चलाई जा रही है, उनके खिलाफ पब्लिसिटी करी जा रही है, उनको बदनाम करा जा रहा है, इस्लाम को बुरा भला कहा जा रहा है, रसूल पाक को बुरा भला कहा जा रहा है, कलाम पाक को बुरा भला कहा जा रहा है। ये उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही कि देखो इस्लाम जो है वो डंडे की नोक पर, बंदूक की नोक पर, तलवार की नोक पर फैलता है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने 3 करोड़ रुपए लिया था ताकि हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर मुसलमान करें। एक बात बताइए, मुसलमानों के पास कितना पैसा है? भारत में मुसलमानों के पास कितना पैसा है? अरे अंबानी, अदानी जो RSS के लिए काम करते हैं, पूरा भारत उनके हाथ में। अगर मौलाना कलीम सिद्दीकी से मात्र 3 करोड़ में इस्लाम कबूल करवा रहे हैं तो अंबानी अदानी को डूब मरना चाहिए। अरे तुम भी पैसा फेंको, जबरदस्त तरीके से मुसलमानों में पैसा बांटो, करवाओ तुम भी जबरन धर्म परिवर्तन। अगर वाकई किसी का मजहब इतना आसानी से परिवर्तन हो जाता है तो करवाते क्यों नहीं हो? पैसा तो तुम्हारे पास मुसलमानों से ज्यादा है। मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, मुसलमानों के पास सिर्फ यकीन कामिल है, मुसलमानों के पास सिर्फ अल्लाह पर यकीन है, मुसलमानों के पास सिर्फ एक किताब है। और वो किताब एक ऐसी किताब है जो रहनुमाई करती है, जो हमें सीधा सच्चा रास्ता दिखाती है, जो हमें सादगी पर
चलना दिखाती है, जो हमें बताती है कि ये जो हम दुनिया में आए हैं ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। हमारी जो ज़िंदगी है वो मरने के बाद शुरू होती है और वही हमारा मुस्तकिल ठिकाना है। यही कलाम पाक से देता है। अगर 3 करोड़ में पूरे भारत का धर्म परिवर्तन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब करवा सकते हैं तो क्यों नहीं अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, बीजेपी वाले, तमाम जितनी पार्टियां हैं, ये क्यों नहीं अपने घोड़े खोल देते और पैसा खोल देते और छोड़ देते सब जगह कि लो भाई आओ आओ हिंदू बन जाओ, हिंदू बन जाओ। मुसलमानों पे भी ट्राई करो, ये ऑप्शन तुम्हारे पास भी तो खुला है अगर बाकी पैसे की नोक पर होता है। ये बेवकूफ़ी की पन की बातें हैं। कोई भी मजहब, कोई भी आस्था आप किसी से ना तो पैसा दे के करवा सकते हैं, ना बंदूक की नोक पर करवा सकते हैं, ना तलवार की नोक पर करवा सकते हैं। ये दिल का मामला होता है, दिल का, और जो दिल कहता है इंसान वो मानता है। मेरा दिल जिस मज़हब को मानता है ज़रूरी नहीं है आपका माने। तो ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बदनाम करने की साजिश है, ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, ये हमारे भारत के मसाजिद को बदनाम करने की साजिश है, ये दारुल उलूम देवबंद को बदनाम करने की साजिश है। जितने भी हमारे भारत में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इस्लामिक, उनको बदनाम करने की तैयारी है। और एक के बाद एक हमारे इस्लामिक रहनुमाओं पर हमला होना, उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डालना, इस बात को दर्शाता है कि भारत में संविधान ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर बोलने की आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर दाढ़ी रखने की आज़ादी, टोपी पहनने की आज़ादी, बुर्का पहनने की आज़ादी को छीना जा रहा है और तमाम मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को टारगेट करा जा रहा है। कब तक चलेगा? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि कब तक आप इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे और कब तक आप ऐसे रहनुमाओं के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? कायदे में तो पूरे भारत के मुसलमानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए था कि क्या सी हिम्मत हुई कि हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को आपने इस तरह उठा लिया जब वो ईशा की नमाज़ पढ़कर मेरठ की एक मस्जिद से निकल रहे थे। इतनी उम्र दराज आदमी, कोई हथियार उनके पास नहीं, इतनी मीठी ज़बान बोलते हैं, इस्लाम की दावत अगर वो देते तो ये नहीं कहते जबरना, वो मिसालें दलाइल पेश कर कहते हैं कि देखो इस्लाम ऐसे सीधे रास्ते पर जाने का आपको एक हमराह हमवार करता है। क्या ये गलत बात है? क्या किसी का मीठा बोलना, क्या किसी का सच्चा होना, क्या किसी का मुसलमान होना, क्या ये गलत बात है? क्या ये हमारा गुनाह बना दिया जा रहा है कि हम भारत में रहते हैं? क्या ये हमारा गुनाह है? क्या हमारी एक पहचान, दाढ़ी, टोपी, हमारा बुर्का, ये क्या यह हमारा गुनाह है? क्या भारत के संविधान में मुसलमानों को रहने की आज़ादी नहीं है? क्या ये गुनाह है? पूछता है पूरा भारत, पूछती है मनीष भी पूछता है भारत न्यूज़ 91, क्या ये गुनाह है? क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए हम लोगों को जागना नहीं चाहिए? क्या हम लोगों को इसी तरह आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें जब तक कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक ये सरकार घुटनों में ना आ जाए और माफ़ी मांगे कि उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उसने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर हाथ डाला, उनकी गाड़ी को रोका, उनको आतंकवादी में लिप्त करके और जबरन धर्म परिवर्तन के इल्ज़ाम में जेल में डाला? क्या हमें नहीं आना चाहिए सड़कों पर? बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप वाकई अपनी गैरत जगाना चाहते हैं और वाकई आप एक खुदा को मानते हैं और अल्लाह ताला की तालीमात को मानते हैं तो धिक्कारे हैं हमारे ऊपर अगर हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये ज़िंदगी हमारी ज़ीरो है। हमें ऐसे ही मर जाना चाहिए क्योंकि इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि हमें अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दी है, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए। हम अच्छी बुरी चीज़ को सोचते हैं, जब हमारी अच्छी चीज़ें हमसे छीनी जा रही हैं तो हमें एहतजाज करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल संविधानिक तरीके से करना चाहिए और इस बात की इजाज़त मेरे भारत का संविधान देता है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। किसी की भावना आहत होती है, किसी का धर्म को लगता है कि मैंने टारगेट करा, तो मैं मनिज़वी और ये भारत न्यूज़ 91 चैनल आपसे दिल से माफ़ी मांगता है। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को फॉलो करिए और लाइक करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।